सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। इन प्रीवियस वीडियो we have discussed about the just a lot of properties of the alcohol. What is the meaning of alcohol, for the classification of the alcohol, for the nomenclature and just physical and chemical properties of the alcohol and especially preparation methods of the alcohol. Now the time to discuss about how we can distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Means particular 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol को हम distinguish कैसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पास में, तो उसी की बात आगे डिस्कस करने जा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ विल गो विद जस्ट टॉपिक, देन टॉपिक इज योर distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. पर्टिकुलर डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं. देन दे विल यूज ऑफ फॉलोइंग मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स का यूज करेंगे? दीज आर द फॉलोइंग मेथड्स. जस्ट following methods will be used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. First is your, that is oxidation reaction, or you can say oxidation process. Second is your dehydrogenation reaction. Number third is your, just we can take Lucas test to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Fourth is your, we can take just esterification reactions. And fifth is your, very important, that is the Victor-Meyer test. These are the 4 tests which is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. First of all, I would like to go with the oxidation reaction. So this is the first oxidation reaction. If we will go with the just oxidation reaction, then listen me carefully. If there is 1 degree alcohol, then first of all it changes in aldehyde and after then carboxylic acid. Without change in number of carbon atom. Means यहाँ जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा उतना ही कार्बन वाला एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और उतने ही कार्बन वाला फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. फॉर द 2 degree alcohol, it will formation of first of all ketone and further vigorous oxidation के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, but it will be 1 carbon less. And for 3 degree alcohol, under similar condition, it will be dehydration और dehydration के थ्रू alkene का formation होगा. This is the dehydration under similar condition. And further it will formation of ketone by oxidation. Ketone आपके पास में यहाँ 1 carbon less होगा. And further on oxidation, vigorous oxidation of ketone, it will formation of carboxylic acid. With 2 carbon less as a compound. So 1 degree alcohol के through, first of all aldehyde, after then carboxylic acid with the same carbon. 2 degree alcohol से ketone, further 1 carbon less carboxylic acid. 3 degree alcohol से because of alpha hydrogen absent है, which kind of the alpha hydrogen will discuss. तो particular dehydration के through alkene का formation होगा and further it will formation of ketone with a less 1 carbon less होगा and further
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी 2 carbon less than the just reactant. So first of all, we'll go with the just 1 degree alcohol. As a 1 degree alcohol, we can take ethanol, and as a just here is the important topic, oxidizing acid. We can use just your acidic K2Cr2O7, K2Cr2O7. Except K2Cr2O7, we can use as an oxidizing agent. We can use acidic basic KMnO4, your acidic K2Cr2O7, just CrO3 chromic oxide, just we can use concentrated HNO3, and we can use concentrated S3PO4. These are the oxidizing agent. So first of all, it will change in CH3CHO by the removal of H2O, and further on oxidation, it gives under similar condition acidic K2Cr2O7 gives carboxylic acid CH3COOH. You can see here is 2 carbon aldehyde with the 2 carbon and carboxylic acid with the 2 carbon atom. So this is the ethanol, this is the ethanol, and this is the ethanoic acid. So this one about the just 1 degree alcohol. If we'll go with the just 2 degree alcohol, then what will be? This is for the 2 degree alcohol. As a 2 degree alcohol, we'll take isopropyl alcohol. This is the isopropyl alcohol. First of all, on oxidation, under similar condition acidic K2Cr2O7, here will formation of ketone by the removal of H2O, and further on vigorous oxidation, drastic oxidation कराना पड़ेगा. Ketone generally oxidized नहीं होता. So cleavage of bond will be from here, CH3, CO, one of the O and H from here. It will formation of carboxylic acid. Rest CH2 होगा यहाँ और 2 of oxygen. It gives you formic acid. You can see यहाँ पर्टिकुलर आपके पास में 3 कार्बन था. 3 कार्बन वाला कीटोन बन चुका है एसीटोन. This is the propane 2-ol. Propane 2-ol से propane 2-ol बन गया, and here will formation of the ethanoic acid. You can see कि पर्टिकुलर एक कार्बन कम है प्राइमरी अल्कोहल की कंपेयर में, यानी कि जो आपने अल्कोहल यूज किया है उसकी कंपेयर में यहाँ पर 1 कार्बन लेस होगा. यही बात हमने डिस्कस की कि 2 डिग्री अल्कोहल से पहले कीटोन बनेगा, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड विद द 1 carbon less as a carboxylic acid. So this was about the just oxidation of 1 degree and 2 degree alcohol. Particular matter को अच्छे से पढ़े because this is too important. हर एक मैटर को बहुत ही इजी वे में लें, प्रॉपरली स्टडी करें बिकॉज इट इज टू इंपॉर्टेंट. दिस इज टू इंपॉर्टेंट. टेक इट सीरियस because of now the time to of just your pre-boards, and many of the students have half yearly exam, so take it seriously. Now we'll go with the just 3 degree alcohol. So if we'll go with the 3 degree alcohol, then what will be, listen me carefully, and as I told you, take it serious. और जितने भी बच्चे अब अपनी स्टडी को सीरियस ले रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं,
पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम को थ्रू द व्हाट्सएप, कोई भी मटेरियल नहीं है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना इजी गोइंग सॉल्यूशन ले सकते हैं। कोशिश करूंगा आपसे एक लंबे टाइम के बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूं बिकॉज ऑफ एग्जाम में कुछ बिजी, कुछ दिवाली वेकेशन, तो अपलोड नहीं कर पाया, बट नो डाउट टिल देन एग्जाम हर एक मैटर अपलोड कर दिया जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल लेने से पहले हम बात करें कि अगर आपके पास में वहां ब्यूटेन 2 ऑल हो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में, तो फिर क्या होगा। तो ब्यूटेन 2 ऑल के लिए आप ये ले लें CH3 CHOH CH2 CH3, ऑक्सीडेशन करवाया, कंडीशन वही एसिडिक K2Cr2O7, H का रिमूवल होगा, यहां से O के साथ में H2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास में ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ 4 कार्बन वाला अल्कोहल था, 4 कार्बन वाला कीटोन बन गया, ब्यूटेन 2 ऑन, ये था आपके पास में ब्यूटेन 2 ऑल। अगर हम आगे बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में ब्यूटेन 2 ऑन के फॉर्म में एक एसिमेट्रिकल कीटोन बनता है। एसिमेट्रिकल कीटोन का मीनिंग क्या है कि CO ग्रुप से अटैच दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो उस पोजीशन में यहां पॉपऑप्स रूल फॉलो होगा। पॉपऑप्स रूल, ये पॉपऑप्स रूल क्या कहता है कि पर्टिकुलर आपके पास में एसिमेट्रिकल कीटोन हो और आप उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विग्रस, तो CO ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ में हो जिसमें कार्बन लेस हो। यहाँ अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है, यहाँ अल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन है, तो CO इसके साथ रहेगा, वो उनका क्लीवेज यहां से होगा। तो एक मॉलिक्यूल CH3COOH, दूसरा मॉलिक्यूल CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड के आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक स्पेसिफिक केस है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पॉपऑप्स रूल क्या है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ asymmetrical ketone, CO group will with that alkyl group which exists less number of the carbon atom, तो यहाँ इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक केस था। इसी के साथ बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में हमने ले लिया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऑक्सीडेशन करवाएं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यू कैन सी यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन था, 1 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो उस पोजीशन में पर्टिकुलर ये सेम कंडीशन में ऑक्सीडाइज ना होकर के बीटा एलिमिनेशन के थ्रू पर्टिकुलर एल्कीन में कन्वर्ट होगा कुछ टाइप से। ये कर दिया आपने कंसंट्रेटेड, जस्ट यू कैन से एसिडिक K2Cr2O7 सेम कंडीशन में। सो दिस इज द एसिडिक K2Cr2O7। सो यहां से H2O का एलिमिनेशन हो गया, H2O के एलिमिनेशन से यहां आपके पास में फॉर्मेशन होगा 2 मिथाइल प्रोपीन का, 2 मिथाइल प्रोपीन का, पर्टिकुलर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल से, और ये H2 का रिमूवल इस एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दे तो कुछ इस टाइप से होगा। ये आपके पास में वही विग्रस ऑक्सीडेशन अंडर सिमिलर कंडीशन, CH3 C एक ऑक्सीजन को लेकर के कीटोन बाहर कर देगा कुछ इस टाइप से, और रिमेनिंग CH2 ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर 3 डिग्री अल्कोहल में 1 2 3 4 कार्बन थे, कीटोन 3 कार्बन वाला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोन, यानी कि 1 कार्बन लेस वाला कीटोन बन चुका है। फर्दर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करवाया बिकॉज कहा ना कि कीटोन इजी वे में ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो विग्रस ऑक्सीडेशन के थ्रू
पर्टिकुलर CH3 COO एक H यहां से ले लेगा, तो CH3 COOH प्लस HCOOH का फॉर्मेशन होगा। यू कैन सी यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन लेस वाला मिल रहा है। तो ये थी बात पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इसी में आगे डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट आता है आपके पास में, दैट इज द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये भी अपने आप में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही टाइप है, बिकॉज ऑफ इन दिस रिएक्शन फिल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो इट अगेन योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में वही इथेनॉल ले लिया जाए, तो अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू कुछ इस टाइप से कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर बनेगा। तो उस पोजीशन में ये H2O के एग्जिट होने से, H2 के एग्जिट होने से पर्टिकुलर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल से। दिस इज द H2 एल्डिहाइड, जस्ट यू कैन से इथेनॉल, कोई कार्बन की नंबर में चेंज नहीं हुआ, इथेनॉल से इथेनॉल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आपने यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़े, सेम इस रिएक्शन में भी डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पर्टिकुलर बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में, सो वी कैन टेक जस्ट योर प्रोपेन टूऑल, कुछ इस टाइप से सेम कंडीशन में H2 का रिमूवल, देन हियर विल फॉर्मेशन ऑफ योर कीटोन विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस, दिस इज द एसीटोन। यहां भी कार्बन की नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, दिस इज एज अ 2 डिग्री अल्कोहल, इथेनॉल एज अ 1 डिग्री अल्कोहल, while propane टू ऑल एज अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये थी बात 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए डिहाइड्रोजनेशन। नाउ विल गो विद द जस्ट 3 डिग्री अल्कोहल। रीड द मैटर प्रॉपर्ली बिकॉज इट्स टू इंपॉर्टेंट एज आई एम सेइंग यू। इसको हम थोड़ा सा नेम प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है इसका, तो ये इथेनोइक एसिड को हम यहां कर दें, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड विद जस्ट यू कैन से 2 कार्बन लेस। ये थी बात आपके पास में कंपेयर कंपाउंड की। तो so this was about the just dehydrogenation for 2 degree alcohol. Now the time to discuss about the 3 degree alcohol. अल्फा हाइड्रोजन नहीं है 3 डिग्री अल्कोहल में, ऑक्सीडेशन में बात किया है, अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन व्हाट विल बी, लिसन मी केयरफुली। So this was about the 2 degree alcohol. Now 3 degree alcohol, and this is the Victor-Meyer test. Victor-Meyer test. So if we go with the 3 degree alcohol, then as a 3 degree alcohol, we'll take 2-methyl propane tool, same condition में Cu and 573 Kelvin temperature, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो नो डाउट बीटा एलिमिनेशन के थ्रू वाटर का रिमूवल होगा, स्पेसिफिक होगा, मैंने बताया ना। देन हियर विल फॉर्मेशन ऑफ जस्ट एल्कीन एज अ 2-methyl propene, दिस इज द H2O
2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। सो पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल के थ्रू आपके पास में बन रहा है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के थ्रू कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल के थ्रू आपके पास में बन रहा है पर्टिकुलर आपके पास में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यू कैन सी डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ये भी डिस्टिंग्विश के रूप में काम में आएगी। सो दिस वाज अबाउट द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। फर्दर बात करें तो थर्ड रिएक्शन आती है आपके पास में, दैट इज द ल्यूकास टेस्ट। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास टेस्ट है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम पर्टिकुलर कहते हैं ल्यूकास रीएजेंट। ल्यूकास रीएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रीएजेंट के थ्रू पर्टिकुलर अल्कोहल को अगर ट्रीट करवाया जाए तो HCl ये आ गया आपके पास में, कंसंट्रेटेड ये कर दिया आपने HCl कुछ इस टाइप से कंसंट्रेटेड, और यहां आपने कैटलिस्ट की फॉर्म में ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2। रिएक्शन होगी तो यहां से H2 बाहर रिमूव होगा, क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, क्लोरो एल्केन। और क्लोरो एल्केन अपने आप में बनेगा व्हाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में, व्हाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर यहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है इसमें, तो व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी आपको उस पोजीशन में। इस रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन अपने आप में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स रिएक्शन भी कहते हैं इसको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो कि हेलोइन में भी डिस्कस कर चुके हम लोग। और अब बात करें अल्कोहल में, इसी में आगे बढ़े तो पर्टिकुलर आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल, क्या एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम किस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, अनदर टेस्ट ट्यूब एंड अनदर थर्ड टेस्ट ट्यूब TT। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ल्यूकोस रिएजेंट डाला। ल्यूकोस रिएजेंट को हम पर्टिकुलर LR भी कह सकते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट शॉर्ट में LR, ल्यूकोस रिएजेंट। तो यहां ल्यूकोस रिएजेंट ऐड किया, यहां भी ल्यूकोस रिएजेंट ऐड किया, यहां भी ल्यूकोस रिएजेंट ऐड किया। जिस टेस्ट ट्यूब में एट अ मोमेंट व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए, व्हाइट टर्बिडिटी 101%, वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में ल्यूकोस रिएजेंट अनदर टेस्ट ट्यूब में डाला। आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट व्हाइट टर्बिडिटी आए, व्हाइट टर्बिडिटी, देन 101%, दैट विल बी एज अ 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर इसी सीक्वेंस में आपने LR ऐड किया है आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट या तो व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए और नॉट ना भी आए 101%, that will be as a 1 degree alcohol. So this was about the way to distinguish about the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol through Lucas reagent. Go through properly with the metal. Now we'll go with the just next method, that is your esterification and further Victor-Meyer test. प्रॉपरली हर एक रिएजेंट को अच्छे से पढ़े। ये क्वेश्चन आया हुआ है ल्यूकोस रिएजेंट क्या है, सो और इस प्रोसेस का नेमिंग रिएक्शन क्या है, क्या नेम है ग्रूव्स प्रोसेस, और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस। सबसे ज्यादा फास्ट है 3 डिग्री, आफ्टर देन 2 डिग्री, आफ्टर देन 1 डिग्री। रीजन पूछे देन यू विल से
just due to formation of 3 degree carbocation in 3 degree alcohol, which is more stable. Now the time to discuss about the esterification reaction. What is that? Listen me carefully. This is the fourth test, esterification reaction. So if we go with the just further, then that is the fourth reaction, esterification reaction. Esterification reaction. Whenever particular carboxylic acid अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करेगा. कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा एंड हियर विल फॉर्मेशन ऑफ RCOOR dash which is called as just ester. It gives fruity smell, एक प्लेजेंट ऑर्डर देता है जिसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. पर्टिकुलर एग्जांपल के रूप में बात करें तो CH3 COOH आप यूज कर सकते हैं, इथेनॉल यूज कर सकते हैं यहां, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में CH3 COOC2H5 का फॉर्मेशन होगा और यहां से H2O का रिमूवल होगा. दिस वाज अबाउट द इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम है इसका इथाइल एसीटेट. आईपीएसी नेम की बात करें तो इथाइल इथेनॉइड. इस रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी अल्कोहल के अलावा बात करें तो हम पढ़ चुके हैं पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए एसिडिक नेचर 1 डिग्री के लिए हाईएस्ट होगी, 2 डिग्री के लिए लेस, 3 डिग्री के लिए लीस्ट वैल्यू होगी रिएक्टिविटी की. सो व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी? वी कैन से मीथेनॉल सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो करेगा MUH. 1 डिग्री अल्कोहल स्लोअर, 2 डिग्री अल्कोहल स्लोएस्ट एंड 3 डिग्री वेरी स्लो. ये अल्कोहल के अलोंग रिएक्टिविटी है. अगर आपसे पूछ ले कार्बोक्सिलिक एसिड के अलोंग क्या रिएक्टिविटी है तो फॉर्मिक एसिड मोर रिएक्टिव, जस्ट एसिटिक एसिड less reactive, just you can say 2-methyl propanoic acid less reactive and particular 3 डिग्री कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा. So this was about the just esterification reaction, about the just fourth test as a esterification. Now the time to discuss about the Victor-Meyer test. So this is the विक्टर मायर टेस्ट. इस टेस्ट की खास बात क्या है पर्टिकुलर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं फास्फोरस और हेलोजन के साथ में. ये कर दिया आपने X2/P, तो आपके पास में हैलाइड का फॉर्मेशन होगा. उस हैलाइड की रिएक्शन आप AgNO2 से कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं आप. फर्दर नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, दिस इज द नाइट्रस एसिड. और फिर उसमें आप पर्टिकुलर जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में आप ऐड करते हैं बेस. बेस ऐड करने के बाद में आपके पास में क्या चेंजेस आते हैं उसके बेस पे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करते हैं. वो कैसे? विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. गो थ्रू प्रॉपर्ली अबाउट दिस स्लाइड.
So if we'll go with the further, then that is Victor-Meyer test. विक्टर-मायर टेस्ट के अलोंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, और इसमें से एक क्वेश्चन हो रहा है कि पर्टिकुलर विक्टर-मायर टेस्ट में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है और उसका क्या कलर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आरबीएससी में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, सो टेक इट सीरियसली। हैलोजन की फॉर्म में हम यहाँ पे आयोडीन यूज कर लेंगे एज ए X2। सो दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में आपने फार्मूला ले लिया RCS2OH, इसको ट्रीट करवा दिया I2 के साथ में फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहां से OH का रिमूवल हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल लेने से, और ये हो जाएगा आपके पास में RCS2 एंड दिस इज द I। इस RCS2I को फर्दर आप रिएक्ट करवाते हैं AgNO2 के साथ में, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, देन हियर विल रिमूवल ऑफ AgI, यहां से ये AgI बाहर निकल गया, तो अब आपके पास में बनता है नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन NO2। फर्दर आप इसकी रिएक्शन करवा दें नाइट्रस एसिड के साथ में। नाइट्रस एसिड के लिए फार्मूला पर्टिकुलर आपके पास में होता है HNO2, कुछ इस टाइप से, इसको हम लिख सकते हैं HONO। तो यहां से O इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर के H2O को रिमूव कर देगा और आपके पास में बन जाएगा RCNO2, और ये आ गया आपके पास में डबल बॉन्ड NOH, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्यों कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड? बिकॉज ऑफ इसका OH वाला कुछ इस टाइप से, C दिस इज द NO2 डबल बॉन्ड NOH, इस OH वाला O जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पर्टिकुलर H+ आयन को लूज कर देता है। H+ आयन को जो लूज करते हैं वो पर्टिकुलर एसिड होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड में आपने 1-2 ड्रॉप NaOH की ऐड कर दी, तो नो डाउट ये एसिडिक नेचर होने के कारण से H+ लूज करेगा। ये OH H2O के रिमूवल से यहाँ आपके पास में बनेगा RC डबल बॉन्ड, दिस इज द N एंड दिस इज द ONA प्लस और माइनस, ये हो गया आपके पास में NO2। इसको हम कहते हैं सॉल्ट है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि ब्लडी रेड कलर का, ब्लडी रेड कलर्ड कंपाउंड होगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वहां आपके पास में अल्कोहल जो यूज किया दैट इज द 1 डिग्री अल्कोहल। तो कंपाउंड आपसे पूछे क्या बन रहा है, देन दैट विल बी सोडियम नाइट्रोलेट एज अ ब्लडी रेड कंपाउंड। इसी में अगर बात करें पर्टिकुलर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो सेम प्रोसेस करेंगे। ये 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया RCHROH, वही I2 के साथ रिएक्शन करवाई फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहां आपके पास में वही इस बार 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। आपने इसको फर्दर ट्रीट करवाया AgNO2 के साथ में, इन दैट केस 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस NO2, और फिर आपने इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया, तो इस बार नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से काम में आएगा HNO2, ये वाला OH इस H के साथ में रिएक्ट करके वाटर बाहर निकाल देगा। रिमेनिंग आपके पास में स्ट्रक्चर होगा RCR, दिस इज द NO2 और दिस इज योर यू कैन से N डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज सूडो नाइट्रोल। यहाँ पे पूछा जाता है लास्ट कंपाउंड क्या बनता है, दैट इज द सूडो नाइट्रोल। और पर्टिकुलर इसमें फिर से आपने 1-2 ड्रॉप NaOH की ऐड कर दी, तो ये अपने आप को ब्लू सॉल्यूशन में चेंज कर लेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन shows about the just 2 degree alcohol. This was about the 1 degree and 2 degree alcohol as a Victor-Meyer test. Now we'll go with the just 3 degree alcohol. So take it seriously, this matter. बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। As I told you, these 5 tests are used to distinguish
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जैसा कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, अल्कोहल फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन के बीच में। सो टेक इट सीरियसली। Now the time to discuss about the just 3 degree alcohol. So if we'll go with the just 3 degree alcohol, then what will be the reaction? So regarding to 3 degree alcohol, this is 3 degree alcohol. 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो यहां RCROH सेम वही I2 के साथ रिएक्शन करवाई फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहां फॉर्मेशन होगा वही आयोडाइड का RCRI। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई AgNO2 के साथ में, तो यहां से सेम माइनस एंड प्लस नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन RNO2, ये AgI बाहर। पर्टिकुलर इसकी रिएक्शन अगर आपने HNO2 के साथ कराई नाइट्रस एसिड के साथ में, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां नहीं है, सो हियर विल नॉट एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन। फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो उस पोजीशन में आप HNO2 डालेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, और NH12 ड्रॉप डालेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं। देन 101% that is as a 3 degree alcohol. So this was about the just 3 degree alcohol regarding to Victor-Meyer test. So all the doctors and chemistry lovers will meet in the next video with a just new topic as a phenol. This was about the distinguished test between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, which is very important. बहुत सारे न्यू टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट का क्या है स्ट्रक्चर, क्या कंपोजिशन है, सो ऑन रिएक्टिविटी सीक्वेंस पूछ सकता है किसी भी रिएक्शन के लिए। सो दिस वाज अबाउट द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के रूप में, दैट इज द फिनोल। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।